Yes, sir. Hi everyone, welcome again to the yet another episode of the series that is empowering the youth. To introduce myself, my name is Mohit from Gulzar Group of Institutes and Chief Executive of Engineer Society Circle and Arcane Innovation. I am very happy to see you guys here observing the Cyber Awareness Month with us. And I would like to show my gratitude to our HOD sir, Ankit Bansal sir, faculty members, those are present here. Thank you so much, sir. I would like to introduce today's panelist for this event. First speaker, Engineer Nagendra Yadav. He is CEO Team Engineers, Executive of RK Innovation, active member of United Cons International Forum, Certified Network Engineer, NSC Fortinet, Homeland Security, US. And our second speaker is Engineer Sonu Chaudhary, co-founder, Team Engineers, Executive of Arcane Innovation, active member of United Cons, Red Hat Certified, and Bug Bounter. And our third speaker, Engineer Vishal Yadav, co-founder, Team Engineers, Executive of Arcane Innovation, active member of United Cons, Certified Digital Marketer. Let's have a look at the agenda of the session. We're gonna discuss about what is cybersecurity, different domains in cybersecurity, various requirements for cybersecurity, various jobs and positions and salaries in the field of cybersecurity, different certifications in cybersecurity, what is hacking, how to prevent to being hacked, what is ethical hacking, different cyber laws in India, and how to being safe from cyber frauds. In the end, there will be a Q&A session for the queries. Also, you can ask your queries in the chat box window. I would hope you will find the session valuable. With this, I now hand over the session to Mr. Nagendra Yadav, our first speaker. Nagendra, mic is yours. Thank you, Mohit. Good morning, respected teachers and all my friends who are in this webinar. In today's session, we are going to discuss about the cybersecurity and the career in the cybersecurity. Before starting my session, I would like to introduce my team. Uh, Team Engineers is cybersecurity and awareness and ethics about the threats that are happening in today's world. Team Engineers have a partnership with UnitedCon and International Forum of Hackers, and we every panelist is the active member of UnitedCon, and Team Engineer is also the member of the World Hackers Day, which are going to be held in the December. Team Engineers has reported bug in many companies and also received bounties from 3 companies. So I would like to start with my session, cybersecurity. Okay, guys. So today topic is discovering the career in cybersecurity. So before starting this session, I would like to give a brief introduction about the cybersecurity. What is the cybersecurity? If you can search on the just starting with the introduction to cybersecurity. Cybersecurity introduction means you can find many other definition on books, on Wikipedia, and on other websites. But I would like to say the definition of the cybersecurity is just in one line: zero trust. So the definition, in my view, definition of the cybersecurity is just zero trust. Zero trust means never trust, always verify. If you are on any type of the digital platform, if you are using Facebook, WhatsApp, whatever, you are on digital platform, it means you cannot trust anyone. First verify the identity, then share your details or share your credential. So
cyber security in normal term is securing our data, digital world, or from the hackers. In every business, in every trade, there is only security, and even in our field, IT field, there is security also. But there is a special term, cyber security. Cyber security means, why this word arise, cyber security. This is just due to a single मैं रोइन ऑल ओवर रिस्पेक्ट। अगर हम एक 20 साल 25 साल किसी कंपनी को बनाने में और उसकी रेपुटेशन को बिल्ड करने में लगाते हैं, एक 2 मिनट के एक्सीडेंट से भी हमारे ऑल ओवर रेपुटेशन को खराब कर सकता है, हमारी ऑल ओवर मेहनत को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर किसी एक वेबसाइट के ऊपर डेटा पड़ा हुआ, अगर कोई हैकर उसको एक्सेस करता है या किसी रैंसमवेयर से अटैक कर देता है, रैंसमवेयर अटैक लगा देता है, देन हमारे पास उसका पूरा एक्सेस हम खो देते हैं और इन रिटर्न हमें उन्हें पे करना पड़ता है। सो इसलिए हमें साइबर सिक्योरिटी और रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये if we are going to compare the cyber security with the present scenario and the past scenario, there is a traditional way cyber sphere, we are having a barriers or we can say we are having a perimeter, जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर से लोकेशन पे सिक्योरिटी देना होता था जब हमारे हम बात कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी के अंदर ट्रेडिशनल वे की और प्रेजेंट आर्किटेक्ट की। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम आज डिजिटल वर्ल्ड में है, जहाँ पे हमारे पास क्लाउड है और हर एक पर्सन के पास वाईफाई, फोन, नेटवर्क, हर कोई कनेक्टेड है। बट अगर हम पास टाइम की बात करें तो सिर्फ हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पर्टिकुलर पीसी से कनेक्ट रहते थे, जिसमें हमारे पास अगर सिक्योर करना होता था हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारी कंपनी को, तो हमारे पास सिर्फ 2 काम होता था, जस्ट यूज मालवेयर, just use firewalls and monitor the incoming and outgoing traffic। और दूसरा काम ये था कि कोई भी हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए फिजिकली। बट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो हम टोटली नेट पे डिपेंडेंट है, हमारे पास क्लाउड की फैसिलिटीज है, हम वायरलेसली वर्क कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, जहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक कोई पेरीमीटर नहीं है और कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे कोई भी कहीं से भी अटैक कर सकता है। सो इस चीज को रोकने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट, हम हैकर्स नहीं बन सकते, हम एथिकल हैकर नहीं बन सकते, बट अपनी सिक्योरिटी को बचा के रख सकते हैं। अगर आज हम बात करें तो मार्केट में हर कोई एक नॉर्मल यूजर नेट पे जो प्रोफेशनल काम नहीं कर रहा, फिर भी वो टारगेट हो रहा है। तो हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे कि कौन से टाइप के हैकर्स किस टाइप के यूजर को टारगेट करते हैं, और एक स्टूडेंट, एक टीचर और एक नॉर्मल एम्प्लॉय को टारगेट करने वाले हैकर्स कैसे होते हैं और क्या वो सच में हैकर्स हैं या नहीं है। सो आगे की स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि अगर हम साइबर सिक्योरिटी की तरफ अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए, जो कि आगे की स्लाइड्स सोनू बताएगा। Today I'll tell you cyber security analyst requirement। You are audible, आजकल Sonu, जो भी please है, continue। या आजकल जो भी है, अगर मुझसे मिलता है तो पूछता है कि भैया क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे जाना है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जाना है तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ से हमें शुरू करना चाहिए था और कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहली बात, आपके पास सिस्टम होना चाहिए, और सिस्टम में ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, तो विंडोज, लिनक्स एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डेबियन वर्जन। सो सबसे पहली बात कि विंडोज से हैकिंग नहीं कर सकते आप, बिकॉज उसमें रूट एक्सेस नहीं होता है। आप बहुत ही आसानी से रूट एक्सेस नहीं कर सकते, बट लिनक्स और पैरेट में आप बहुत आसानी से रूट एक्सेस कर सकते हो। और लिनक्स में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको प्री डिफाइंड मिल जाएंगे, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है लिनक्स में। आप यहाँ से 1 by 1 देख सकते हो, जो कि लिनक्स में हमें टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात कि हमें प्रॉपर नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क में, तो हमें उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट मी शो यू। जैसे कि एनएफ है, ठीक है, और कोई वेबसाइट, चलो अपना एक ले लेता हूँ वेबसाइट गुलजार का। तो मैंने यहाँ पे स्कैन करना शुरू कर दिया है,
अब नेटवर्क से कम्युनिकेट होकर टर्मिनल से हमें यहाँ से पोर्ट ओपन करेगा, जो भी पोर्ट ओपन होंगे वो हमें शो कर जाएंगे। अब दूसरी बात, पोर्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे टीसीपी पोर्ट्स, ओके, 3850 पोर्ट, सी पैनल पोर्ट्स, जो भी पोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे आपको ओपन शो कर रहे हैं, मीन्स हम यहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पोर्ट्स का मतलब ही होता है एक नेटवर्क से कम्युनिकेट करना, उससे बात करना, ठीक है, चाहे फाइल ट्रांसफर की पोर्ट्स हो, चाहे कोई पोर्ट्स हो, उससे हमें बात करना होता है, ठीक है। और हम कम्युनिकेट करके उसकी जो भी हैच फाइल है, जो भी एरर फाइल है, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, और पूछते हैं कि मुझे कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट्स या कोई भी डिवाइस ऐसी है जो प्रोग्रामिंग बेस्ड है, अगर आप उसमें बग फाइंड करना चाहते हो या सिक्योरिटी को टेस्ट करना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो, चाहे जावा हो, वट एवर जो भी लैंग्वेज हो। अब तीसरी बात है सर्टिफिकेशन की, कि हमें कौन कौन सी सर्टिफिकेट करना चाहिए। अगर आप बिगिनर हो, एज ए बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, नो नीड सर्टिफिकेशन। ऐसे बहुत बड़े बड़े हैकर्स हैं जिनके पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है, बट उन्होंने उस फील्ड में रिसर्च किया है और बग फाइंड किया है, और जो भी हम बग फाइंड करते हैं, हमें कंपनी देती है कि हॉलो फ्रेम अनलिमिटेड देती है। तो जो हम रिसर्च करते हैं और हमारा रिसर्च ऑनलाइन पब्लिश हो जाता है, हम कभी भी उसे देख सकते हैं। अगर आप कंपनी के पास जाते हो और बोलते हैं कि सर आई डोंट हैव सर्टिफिकेट, और मेरे पास सर्टिफिकेट कोई नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये अचीवमेंट्स है, तो वो अचीवमेंट्स सर्टिफिकेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कंपनी पहले ही प्रेफर करेगी। ओके, नाउ ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स, जो डोमेन्स है। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस कंट्रोल। अगर आपके पास कोई सिस्टम है और उसके एक्सेस कंट्रोल पता करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सिस्टम में जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसे पैच करना पड़ेगा। जो हैकर है, उसके अटैक करने से पहले आपको सबसे पहले उसे पैच करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। मान लो कि कोई ए है और बी है। ए चाहता है कि बीच में कोई भी पर्सन मेरा मैसेज ना देखे और मैं बी के पास सक्सेसफुली भेज सकूं, चाहे अटैकर मिडिल मैन ऑफ द मिडिल अटैक करे, चाहे कोई अटैक करे, हम ए से बी के पास बहुत इजीली सेंड कर सकते हैं। और बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ओके, अब यहाँ पे हमारा है साइबर फोरेंसिक। सबसे बड़ा टॉपिक है साइबर फोरेंसिक्स, जो कि आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि हम साइबर फोरेंसिक बने और सीबीआई में काम करें, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप साइबर फोरेंसिक में काम करना चाहते हो, और जो स्पेशली जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, कौन से टूल्स यूज करते हैं। ऐसा जरूरी है कि उनको स्पेशल टूल्स मिलते हैं? नहीं, उनको स्पेशल टूल्स नहीं मिलते हैं। लेट मी शो यू। एल्वेशन नाम है टूल्स का, आप यहाँ से देख सकते हो। हमारा एक पोर्टल खुल रहा है सैल्वेशन का, क्योंकि मोस्टली सीबीआई में जो काम करता है वो यूज करता है इस पोर्टल्स को। सैल्वेशन एक कंपनी है जो कि साइबर फोरेंसिक में काम कर रही है, और वो अलग अलग टूल्स और अलग अलग डेटाबेस को मैच करके अपना डेटाबेस कलेक्ट कर रही है, चाहे वो कंप्यूटर फोरेंसिक हो, मोबाइल फोरेंसिक हो या वीडियो फोरेंसिक